सुप्रिया श्रीनेत ने दिया मोदी सरकार के 100 दिन का हिसाब। देखिए इस पूरी रिपोर्ट का स्वागत है। मैम आपने 100 दिन की बात की है, इन्हीं 100 के जो अभी पहले अगर इसके बारे में बात कर लें तो मैं अनुग्रह 100 दिन में ही वो 4 दिन भी तो हैं। पहले जो मैंने बात करी उस पर लोगों को पूछ दीजिए, फिर आपसे मैं करूंगी। जी, गिव हिम द माइक प्लीज। जी Ma'am, on completion of 100 days of the government sources have said that one nation, one election will be implemented in this term of the Modi government. So what is the Congress's stand on that? You quoted government sources. Here I am, the official spokesperson of the Congress party, laying threadbare the many failures of the Modi government. How long is this government going to survive by leaking selective information? How long is this government going to survive by turning a blind eye to real and actual problems of this nation? How long is this government going to survive by planting information, by releasing these hot air balloons to test waters? The reality is that there is no draft. The reality is that there has been no discussion. The reality is that there are assemblies in progress. The reality is that the government has made no attempt to speak to us. It is absolutely not pragmatic to do this, but the government has had to have a conversation. So these source-based information, that's what this government has survived on. Leak information, source-based, run news channels, news agencies, do reportage through WhatsApp. This nonsense must stop. But that's what continues, and that has continued in the last 100 days. यहां पर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन की बात। यह सरकार सूत्रों पर कब तक चलती रहेगी? सरकार के अधिकृत व्यक्ति इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? सरकार कोई ड्राफ्ट क्यों नहीं पेश करती है? सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है? असलियत यह है कि तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको आप भंग नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि शगुफा बार बार छोड़ा जाता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं, बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। जब आप बैसाखियों पर आश्रित होते तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब तक ये सूत्रों के माध्यम से, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से आप सरकारें चलाते रहेंगे? सवाल इस बात का है। जी मैम, ma'am, you are asking questions regarding the train accidents which have taken place in the last 100 days. But on the other side, it is Prime Minister Narendra Modi who is going to flag off the Vande Metro, and it is now being renamed as Namo Bharat Rapid Rail. So how do you see this, ma'am? I am all for modernization of rail infrastructure. I am all for bullet trains. I am all for metros, whether they are called Vande Bharat or whatever name you may want to give them. I am all for all of that. But who will answer the question that in the last 100 days, there have been 38 rail accidents and 21 people have lost their lives? I do believe the frequency of rail accidents and the death toll has perhaps made the government insensitive. There are 21 people in this country who have been dead because of negligence of Indian Railways. 21 people died because railway tracks have not been modernized. 21 people died because you kept talking about Kavach, but you did zilch with it. That's the reality. The Prime Minister can keep inaugurating one train after the other, but who's going to be answerable for 21 deaths that happened? Who's going to be answerable for the many derailments that happened on a daily basis? ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन ट्रेन डिरेल ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब हादसा ना हो। 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जवाबदेह कौन है? रेल मंत्री कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। 21 मौतें इस देश में छोटी घटनाएं हैं? 38 रेल एक्सीडेंट छोटी घटनाएं हैं? आप रेल बनाने में व्यस्त है तो आप रेल पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप रेल को सुधारिए, आप कवच लाइए, आप पटरियों का re-energize them, rebuild them. मैं तो कह रही हूं आप बिल्कुल लाइए, वंदे भारत भी लाइए, आप मेट्रो भी लाइए, आप बुलेट ट्रेन भी लाइए, लेकिन जो कॉमन आदमी जो रेल से चलता है, जो गरीब आदमी रेल से चलता है, जो आज अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उनके लिए आप क्या कहिएगा? मैम आप बात कर रही हैं 100 दिन की, इधर मैम लेफ्ट में आपके, आप बात कर रही हैं 100 दिन के फेल्योर की, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जैसे
आंध्रा को स्पेशल पैकेज दिया गया। आज भी जब गुजरात में है प्रधानमंत्री, तो अर्थव्यवस्था की आपने बात करी, तो 8,000 करोड़ की लागत के प्रोजेक्ट्स गुजरात को मिल रहे हैं। तो सरकार ये भी कह रही है कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आंध्रा को इतना बड़ा पैकेज दिया है, क्या कहेंगे आप? गुजरात में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, बहुत अच्छी बात है। उस स्टैचू ऑफ यूनिटी का जाने का जो रास्ता है ना, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहां गड्ढे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरात में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया, उसमें बड़े बड़े गड्ढे और क्रैक हो गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? मोरबी पुल में बच्चों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। गुजरात में संसाधन जा रहे हैं, अच्छी बात है। महाराष्ट्र तो लेकर गए हैं आप, क्यों महाराष्ट्र को आपने ठगा? आज महाराष्ट्र में चुनाव है, आप जाके वहां पे क्या बोलिएगा? काश ऐसे प्रोजेक्ट यूपी में भी आते, बिहार में भी आते। कोई बात नहीं, गुजरात में जा रहे हैं, ऐसे ही प्रोजेक्ट यूपी और बिहार में भी लाइएगा। लेकिन आपकी जो तमाम विफलताएं हैं, जिन चीजों में आज सुदर्शन सेतु का मैंने नाम लिया, सड़कों का नाम लिया, पुल का नाम लिया, गुजरात में अहमदाबाद का जो मॉडल है वो दिख रहा है, कारें डूबी हुई है, बारिश नहीं झेल पा रहा है शहर, उसका जवाब दे कौन होगा? मैडम, एक वीडियो वायरल हुआ है, अजीत डोवाल पुतिन से बात कर रहे हैं। नो, आई विल फर्स्ट आंसर क्वेश्चंस ऑन 100 days एंड देन आई विल कम टू यू। मैम, मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने एक बुकलेट 36 पेज की छपवाई है, तमाम सांसदों को दिया, कहा कि जाएं अपने क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाएं। वह विशेषज्ञ कहते हैं ऐसा इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं जो उपलब्धियां के रूप में हो। तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं 10 साल 100 दिन के बाद भी मोदी सरकार पैसा कुछ नहीं, जनता फिर पूछ रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। तो सवाल किया, यही तो मैंने बोला है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज असलियत यह है कि हरियाणा में चुनाव है और मोदी जी के मंत्री लोगों को तो गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। आज असलियत यह है कि आपके सांसदों और विधायकों को तो गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बुकलेट लेकर कहां जाएंगे? ये बुकलेट थोड़े दिनों बाद रद्दी के ढेर में उसके बीजेपी के दफ्तर के बाद आपको पड़ी मिलेगी, देख लीजिएगा आप। मैम, एनी अदर क्वेश्चंस ऑन 100 days? हाँ मैम, इन्हीं 100 दिनों में पिछले 4 दिन भी हैं जिसमें पहले तरविंदर मारवा बीजेपी के नेता वो राहुल गांधी को दादी के जैसा हर्ष रोने की बात कहते हैं। रवनीत बिट्टू जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। और आज शिवसेना सिंधे गुट के नेता है, विधायक हैं संजय गायकवाड़, उनका कहना है कि राहुल गांधी की जीभ काट के लाने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की लगातार पिछले 100 दिनों में से 4 दिन में बयानबाजी हुई है और कांग्रेस पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन, नाराजगी सिर्फ बयानों में दिख रही है। मैं जो कर सकती हूं वो तो मैं करूंगी, और मेरा काम बयान देना है और यहां पे प्रेस वार्ता करना है और सोशल मीडिया चलाना है। आपने 3 चीजों का जिक्र किया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 बार के चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग बीजेपी या उनके घटक दल कर रहे हैं, इस हिंसा पर वरद हस्त किसका है? ये सारे नफरती चिंटू इस तरह की बात कैसे कर पा रहे हैं? असल आतंकी ये है, इनकी जगह जेल में है। ये जेल कब जाएंगे? और अगर इनको नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संरक्षण नहीं है तो क्या इनकी हैसियत और हिम्मत है कि ये इस तरह की बातें कर ले? आपने एक आदमी का नाम लिया, वो और भौंके तो देश को उसकी असलियत और पता चलेगी। पंजाब ने आपको पैदल कर दिया, अभी भी आप अपना पाठ नहीं पढ़े हैं। जिसकी राजनीति राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर चमकी, जब वो इस तरह की बातें करता है तो शर्म आती है। लेकिन असलियत यह भी है कि जब आप कांग्रेस के सगे नहीं हुए तो बीजेपी में आपके ऊपर भरोसा कौन कर रहा है? तो आप सिर के बल खड़े होकर चिल्लर पार्टी की तरह चिल्लाएंगे, इस तरह के बेतुके बयान देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ हिंसात्मक बयान देना, हिंसा की बात करना एक लोकतंत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैं इस मंच से कहती हूं,
अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो यह आपके इशारे पर कहा जा रहा है आपका संरक्षण प्राप्त है। इस देश में लोकतंत्र में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप लगातार इन चीजों को होने दे रहे हैं तो यह आपके इशारे पर चीजें हो रही हैं और कही जा रही हैं। राहुल गांधी को इन चीजों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी अपना काम बेखौफ होकर कर रहे हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने देश के 4,500 से ज्यादा किलोमीटर पैदल नाप दिए, कन्याकुमारी से कश्मीर। उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक इस देश को जोड़े रखने के लिए यात्रा करी, अजनबियों से मिले, लोगों के आंसू पोंछे, लोगों को ढांढस बंधाया। इस देश को लगता है कि वो एक आखिरी उम्मीद है। बेरोजगारों को लगता है, युवाओं को लगता है, किसानों को लगता है, मजदूरों को लगता है, महिलाओं को लगता है। ये कुछ नहीं है। आप जितना राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलिएगा, आप उतनी ज्यादा अपनी फजीहत करवाइएगा लोकतंत्र के चुनावी मैदान में। There are multiple incidents that you and your colleagues have quoted here of absolutely disgusting remarks made against Rahul Gandhi. Who is Rahul Gandhi? He's a 5-term elected MP. He's the leader of the opposition in India's democracy. And how can such statements replete with violence be tolerated? And why must I not say that if members of the BJP and their alliance partners are resorting to these violent statements, then this is happening at the behest of Narendra Modi and Amit Shah. This has your complete political patronage. Why must I not say that you are the one asking them to make these statements? Rahul Gandhi cares 2 hoots about these statements. He is going to do all it takes to raise the voice of the people, to empower people, to talk about unemployment, to talk about high prices, to talk about income inequality, to actually expose you on the Adani scam. He is going to do all it takes to keep this country united. Whether it is walking from Kanyakumari to Kashmir or doing the journey from Manipur to Mumbai. He doesn't care, but we do. And we certainly ask Narendra Modi and Amit Shah that how do these rabid elements make statements like these and get away with it? And the reality also is that some of our turncoats who are making these statements, absolutely shameless, because you have got to prove to the BJP that I have been a turncoat. But guess what? If you couldn't be loyal to us, they're not going to trust you there. Ma'am, the vice. किसी और से करके आपके पास आती हूँ। जी बोलिए। नहीं, दूसरा है मेरा, तो आप ये पूछ लो। ओके मैम, तो इसी में एक सवाल जो विक्रांत जी ने भी पूछा, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग शिवसेना के एमएलए ने जो बयान दिया है उस पर या बिट्टू ने जो बयान दिया है उस पर करेंगे? और कांग्रेस चुप क्यों बैठी है, ये एक सवाल है। कांग्रेस चुप बिल्कुल नहीं बैठी है। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल इसके खिलाफ केस दर्ज होंगे, बिल्कुल यहां पर दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ इस बात पर। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी इन नफरती चिंटुओं की बात से बहुत ऊपर है। राहुल गांधी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये नफरती चिंटू बिलबिलाते हुए क्या कह रहे हैं। इन नफरती चिंटुओं को बीजेपी में बढ़ने का यही एक माध्यम पता है, राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन अब जो बात है वो थोड़ी सी पानी सर के ऊपर चला गया है। अब आप हिंसा की बात कर रहे हैं और मैं क्यों ना कहूं कि ये हिंसा की बातें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर उनके संरक्षण में हो रही है और बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। जी हाँ मैम, इसमें थोड़ा विस्तार से आप प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड आई है सरकार की तरफ से, मोदी 3.0 100 दिन का। उसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी बात की है, मोदी किसान मित्र की बात की है, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की चैंपियन मोदी की बात की है। तो पूरा एक लंबा खाका दिया गया है। तो मैंने भी उतना ही लंबा खाका आपको दिया, आप बाहर चली गई थी, आपने सुना नहीं। बहुत लंबा खाका मैंने भी नहीं, मैंने पूरा सुना, फ्लैश भेजा जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पलटवार किया है महिला सुरक्षा और तमाम मसलों पर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो ज़मीनी हकीकत है नहीं देख रही है? क्योंकि शुरुआत उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, किस तरह से एयरपोर्ट, रेलवे, रोड में बहुत काम हुआ है, और क्या ये सियासी ज़्यादा बयानबाजी है? मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं।
और मैं दावे के साथ इस मंच से कहती हूं, आप तो क्या बीजेपी का कोई आ जाए यहां पर और मेरे एक भी तथ्य को डिस्प्यूट कर दे। 56 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुए हैं 100 दिनों में, चाहे वो इस देश का संसद, और वो आपने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो टपक रहा था और कैसे बाल्टी में पानी चू रहा था, चाहे वो श्री राम मंदिर का गर्भगृह हो, चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो जो 8 महीने में ही ध्वस्त हो गई, चाहे वो सुदर्शन सेतु हो, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जाने वाले रास्ते हो, तमाम ब्रिज हो, तमाम पुलिया हो, तमाम सड़कें हो जो कोलैप्स हो चुकी हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हमने कभी देखा नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सस्ता, घटिया, भ्रष्टाचार से बनाया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जबलपुर और राजकोट की कैनोपी और छतें और हिस्से ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्तों से बने हुए हों। तो नरेंद्र मोदी अपने 36 पन्ने या जितने भी पन्ने आपने कहे, 36 पन्ने जितने भी आपने कहे, उसमें कितना भी झूठ परोस लें, इन 56 चीजों का जवाब दे देना। बड़े ताशे बाजे के साथ आपने संसद का इनॉग्रेशन किया था, वो संसद चू रही है। हजारों करोड़ आपका पैसा लगा है इसमें, मेरा पैसा लगा है इसमें टैक्स पेयर्स मनी लगा है, इसमें जीएसटी में जो गरीब आदमी आटे दही पर जीएसटी दे रहा है वो भी लगा है। यह आपका जवाब है इन सब चीजों पर? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछा, आपने महिला सुरक्षा पर पूछा। 107 से ज्यादा जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। अपराध छोड़ दीजिए, 157 से ज्यादा पीड़िताएं हैं। मैं आपको 4 दिन पहले की सवाल पूछती हूं, आपकी पार्टी का सदस्य, आपके सांसद के पिता, नाक रगड़ के आपको उसके बेटे को देना पड़ा टिकट। ब्रजभूषण सिंह विनेश फोगाट के खिलाफ ना सिर्फ जहर उगलता है बल्कि उसका चरित्र हनन करता है, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। हर टीवी प्लेटफॉर्म उसको माध्यम दे रहा है ये बकवास करने का, और नरेंद्र मोदी उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। यह है आपकी महिला सुरक्षा की असलियत। यह है असलियत कि 500 लोग जब बदलापुर में सड़क पे उतरते हैं तब नाबालिग बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हुआ उसकी एफआईआर दर्ज होती है, और आप केस बना देते हैं 500 लोगों के खिलाफ, उनको जेल में डाल देते हैं। यह असलियत है। आप बिहार पे, आप उत्तराखंड पर, आप हर उस राज्य पे चुप रहिएगा जहां पर आप शासन में। बिल्कुल बंगाल पर आक्रोशित होइए। हमने बंगाल पे भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी किया। आपको बदलापुर पर सांप क्यों सूंघ गया? आप बात कर रही हैं यहां पर ओबीसी और दलितों की, क्यों लैटरल एंट्री आप लाए, जिसने आरक्षण के हर प्रावधान के तार तार कर दिए, ताक पर रख दिया आरक्षण। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। 36 पन्नों का वो जबानी जमा खर्च, वो लफ्फाजी, वो जुमलों का पुलिंदा लोग पढ़कर कूड़ेदान में डाल देंगे। जी सॉरी, आपका सवाल था, माइक ले लीजिए। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एनएसए अजीत डोवाल जी पुतिन से बात कर रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन के अध्यक्ष है जेलेंस्की, उनका जो पीएमजी से बातचीत हुई उसका ब्यौरा वो दे रहे हैं। क्या ये सही है? सही नहीं है तो कांग्रेस की अधिकृत प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, इसका पुष्टि मैं कैसे कर सकती हूँ? इसकी पुष्टि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करे, एनएसए का ऑफिस करे, प्रधानमंत्री कार्यालय करे। मैं इसकी पुष्टि क्यों करूंगी? वो कुर्सी की एज पर बैठे हैं, कुर्सी से बिल्कुल खड़े हैं, गिरने वाले हैं। वो जेलेंस्की की बातें बता रहे हैं, वो बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद बिल्कुल एज, मैंने वो तस्वीर देखी है, अब वो सही है गलत है क्या है इसकी पुष्टि तो विदेश मंत्रालय करेगा। मुझे थोड़ी चिंता हुई कि वो अगर थोड़ा सा और सरक जाते तो गिर जाते। इस बात की मुझे चिंता हुई कि देश का सुरक्षा सलाहकार ऐसी एज ऑफ द सीट पर था कि वो अगर जरा सा लेश मात्र भी इधर उधर होते तो वो शायद गिर सकते थे। ऐसी क्या, इतना क्या डरना है? ये संप्रभु देश है, और संप्रभुता का एक पैमाना ये भी है कि आप किससे मिलिए, क्या करिए, ये आपको देश के सदन को, देश के विपक्ष को देश में बताना जरूरी है। दूसरे को जाके ब्यौरा क्यों दिया जा रहा है? लेकिन मैं अपना जो टिप्पणी है इस पर इसलिए रिजर्व रखूंगी क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इन प्रतिक्रियाओं का जवाब इस देश के विदेश मंत्रालय को, पीएमओ को जरूर देना चाहिए। देखकर यह दुख हुआ कि हिंदुस्तान जो रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीना तान के बैठता था दुनिया के सामने, हिंदुस्तान में जहां पर ऐसी प्रधानमंत्री हुई कि अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद
आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला। वहां के सूचना सलाहकार ऐसी सीट की एज पर बैठे थे कि बेचारे गिर जाते। Ma'am, since the US visit of Rahul Gandhi, Vice President Jagdeep Dhankar is repeatedly attacking him, saying that the remarks reflect an anti-constitutional mindset. So how does the Congress look at his attacks and his criticism? I think you've got it wrong. I think Jagdeep Dhankar is criticizing a leader for defaming the country overseas. He means Mr. Modi. I think he's showing a mirror to Mr. Modi. Mr. Modi who went to China and said 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में पैदा होते थे वो अपने भाग्य को कोसते थे। दक्षिण कोरिया में जाकर यही बोला, कनाडा में जाकर ये बोला, अमेरिका में जाकर बोला, ब्रिटेन में जाकर बोला। वो उनको दिखा रहे हैं। लास्ट चेक्ड उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बाईपार्टिजन है, वो किसी दल को बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन कान बंद करके अगर आप इस देश के उपराष्ट्रपति को सुनिए तो आपको क्या लगता है? इस बात का ज्यादा अच्छा जवाब तो आप दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से मैं कुछ कहूंगी तो थोड़ा अमर्यादित हो जाएगा, थोड़ा वो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा मेरे लीडर्स को बुला बुला के मेरे ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाने लगेंगे। और कोई सवाल? धन्यवाद।